الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء، انشاءاللہ اس پیریڈ میں ہم لوگ حدیث کی کتاب مشکوٰۃ المصابیح پڑھیں گے۔ تو آج پہلے درس میں جب ہم کوئی کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے مؤلف کے بارے میں کہ اس کتاب کس نے لکھا ہے، ان کی سوانح حیات اور اس کتاب کے بارے میں مبادیات جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں۔ اس کتاب کے مصنف امام بغوی رحمہ اللہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا نام جانتے ہیں کہ ان کا نام کیا تھا۔ ان کا نام اسمہ الامام الحافظ المجتہد المحدث المفسر، یہ سارے ان کے القاب تھے۔ جو ان کا اصل نام تھا حسین بن مسعود بن محمد الشافعی، حسین بن مسعود بن محمد الشافعی۔ آواز کلیئر ہے نا؟ نسبت ہو، اس کے بعد ان کی نسبت کہاں تھی، کس چیز کی طرف یہ منسوب تھے، کس علاقے کی طرف یہ منسوب تھے، کس گاؤں کی طرف یہ منسوب تھے، یا کس کام کی طرف یہ منسوب تھے۔ تو ان کو فرہ کہا جاتا تھا۔ ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرہ کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں ان کو فرہ کیوں کہا جاتا تھا؟ نعت لأبیہ نسبت الی عمل الفراء وصنعها وبیعها، یہ نسبت ان کے باپ کے عمل کی طرف ہے۔ ان کے باپ ایک کام کرتے تھے، فرہ کا کام کرتے تھے، اس کو بناتے تھے، اس کو بیچتے تھے، اس لیے کیا کہتے تھے؟ ان کو فرہ کہتے تھے۔ اور دوسری نسبت ان کی بغوی ہے۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ بغوی ہے، جو کہ خراسان کے اندر مرو اور ہرات کے اندر ایک جگہ ہے جس کو بغ یا بغشور کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بغ یا بغشور کہا جاتا ہے۔ وہاں کے رہنے والے تھے، اس کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کا کنیت کیا تھا؟ کنیتہ ابو محمد۔ کس لقب سے مشہور تھے، کن القاب سے ملقب کیے گئے تھے؟ ان کو محی السنہ اور قامع البدع کہا جاتا تھا۔ تو یہاں ایک چیز لکھنے کی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محی السنہ کیوں کہا جاتا ہے۔ محی السنہ کا مطلب ہوتے ہیں سنت کو زندہ کرنے والے۔ قامع البدع کیوں کہا جاتا تھا؟ قامع البدع قمع یقوم، مطلب جڑ سے اکھاڑ پھینک دینا، کوئی چیز ختم کر دینا۔ البدع الذي لم يكن عليه عمل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا عليه عمل اصحابہ، یعنی ہر وہ چیز جس پر نہ اللہ رب العالمین کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل ہو اور نہ ان کے صحابہ کرام میں سے کسی کا عمل ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ تو ان کو قامع البدع کہا جاتا ہے، یعنی بدعت کو ختم کرنے والے، بدعت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والے۔ تو ان کا جو لقب ہے، اس لقب کے پیچھے کیوں ان کو لقب دیا گیا؟ کوئی تو وجہ نہیں ہوگی۔ تو محی السنہ ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کی ولادت جو ہوئی تھی وہ 5ویں ہجری میں 433 میں تقریباً ان کی ولادت ہوئی تھی۔ اور جب رحمہ اللہ امام بغوی رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت جو عصر ذہبی تھا علم حدیث کا، وہ القرن الثالث من الہجرہ، 3 صدی ہجری جو تھی، وہ قرآن و سنت کی تدوین کا، قرآن و سنت کے عصر ذہبی اس کو کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں کا انصراف کتاب و سنت سے چھوڑ کر کے دوسری کتابیں، معتزلہ کی کتابیں، منطق کی کتابیں اور یونان و فلسفہ کی کتابوں کی طرف ان لوگوں کا میلان ہونے لگا۔ تو انہوں نے حدیثوں کی طرف سے ان کا رجحان اٹھ گیا۔ تیسری صدی ہجری کے بعد 4 صدی ہجری اور دھیرے دھیرے 5ویں صدی ہجری کی شروعات تک، تو جب امام بغوی رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی، پیدائش ہونے کے بعد انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ علم حدیث حاصل کرنے کے بعد اس وقت بدعات و خرافات ایک دم عروج پر تھے۔ کیا تھے؟ بدعات و خرافات ایک دم عروج پر تھے۔ لوگ
अहादीस से भटक चुके थे। लोग तमाम के तमाम लोग बिदात में मुलव्विस थे। तो इन्होंने जो काम किया, हदीस की किताबें लिखनी शुरू की, लोगों को हदीस की तरफ बुलाने लगे, लोगों को सही इस्लाम, सही कुरान और सही अहादीसों की तरफ रग़बत दिलाने लगे, उसकी दावत देने लगे और हदीसों को फैलाने का काम लिया। इस वजह से इनको क्या कहा गया है? मुहय्युल अस्सुन्ना कहा जाता है, यानी सुन्नत को ज़िंदा करने वाले। और कामिउल बिदअह क्या कहते हैं? कामिउल बिदअह रहमहुल्लाह को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बिदअत का कलाकमा किया था। उस वक्त बिदअत अपने सदी 5वीं सदी हिजरी में बिदअत अपने उरूज पर थी। तरह तरह के खुराफात बिदअत ने जन्म ले चुके थे, तरह तरह की बिदअत और खुराफात उरूज पर थे। तो उन्हीं बिदअत और खुराफात को ख़त्म करके और अहादीस को फैलाना शुरू किया, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कामिउल बिदअह कहते हैं। क्या कहते हैं? कामिउल बिदअह कहते हैं। उसके बाद विलादत रहमहुल्लाह की पैदाइश कब हुई? विलादत मतलब पैदाइश। तो उलिदा रहमहुल्लाह फ़ी बग़सूर सनत 33 व 400 मिनल हिजरा। सनत 33 व 400 मिनल हिजरा। इमाम रहमहुल्लाह की पैदाइश बग़सूर में कब हुई? 433 हिजरी में। उसके बाद इनके शयूख की तरफ आते हैं कि इमाम रहमहुल्लाह ने यानी जब इब्तिदाई तालीम अपने इलाके में हासिल की और अपने इलाके के उलमा से हासिल की, उसके बाद और दीगर जगहों पर रहमत करके गए, वहाँ के उलमा से हासिल की इल्म दीन या इल्म हदीस हासिल की। तो उन उलमा में से नामवर आलिम कौन कौन थे, यानी उस दौर के अहादीस के आलिम कौन कौन थे जिनसे इमाम रहमहुल्लाह ने अहादीस का इल्म हासिल किया? कहते हैं शयूख़ अख़ज़ल फ़िक़्ह अनिल क़ाज़ी हुसैन बिन मोहम्मद, कि इन्होंने फ़िक़्ह की जो तालीम हासिल की, फ़िक़्ह का जो इल्म हासिल किया, वो किससे हासिल की? क़ाज़ी हुसैन बिन मोहम्मद, यानी इनके असातिज़ा में से एक नंबर कौन है? क़ाज़ी हुसैन बिन मोहम्मद है। इसी तरीके से दूसरे उस्ताद कौन हैं? अब्दुल वाहिद बिन अहमद बिन क़ासिम अल हरवी। अब्दुल वाहिद बिन अहमद बिन क़ासिम अल हरवी। फिर तीसरा उस्ताद कौन है? अली बिन यूसुफ अल जुवैनी। कौन है? अली बिन यूसुफ अल जुवैनी। चौथे उस्ताद कौन है? याकूब बिन अहमद अस्सैरफ़ी। याकूब बिन अहमद अस्सैरफ़ी। इसी तरीके से पाँचवें उस्ताद मोहम्मद बिन मोहम्मद अश्शीराज़ी। कौन है? मोहम्मद बिन मोहम्मद अश्शीराज़ी। तो कुल मिलाकर के यानी रहमहुल्लाह के बहुत सारे असातिज़ा से इल्म हासिल किया, उनमें से हम 5 पर इक्तफ़ा करते हैं। कितने पर? 5 पर इक्तफ़ा करते हैं। इसी तरीके से जब इमाम रहमहुल्लाह किसी के शागिर्द थे, इनका कोई शयूख था, तो इनके बाद आने वाले लोगों ने भी इसे इल्म हासिल किया होगा कि नहीं? इनके बाद आने वाले लोगों ने भी इसे इल्म हासिल किया होगा। तो उनको क्या कहेंगे? जिन्होंने इनसे इल्म हासिल की उनको क्या कहेंगे? इनके तलामीज़, यानी तलामीज़ुहु रहमहुल्लाह कौन कौन है? यानी उनके शागिर्द, यानी वो लोग जिन्होंने इमाम बग़वी रहमहुल्लाह से इल्म हदीस हासिल की। तो उनमें से सबसे पहले कौन है? अबू मंसूर मोहम्मद बिन असअद। अबू मंसूर मोहम्मद बिन असअद। दूसरे कौन है? मोहम्मद बिन मोहम्मद अत्ताई। मोहम्मद बिन मोहम्मद अत्ताई। तीसरे कौन है? फ़ज़लुल्लाह बिन मोहम्मद। तो ये 3 शागिर्द हैं जिनका मैंने तज़किरा किया। ये 3 शागिर्द मतलूब हैं। उसके बाद आइए अब देखते हैं कि इमाम रहमहुल्लाह का अक़ीदा क्या था, क्योंकि अक़ीदा हर किसी आलिम का अक़ीदा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इल्म हदीस हासिल करने जा रहे हैं, इल्म दीन हासिल करने जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इल्म दीन की
किसी ऐसे बंदे से हासिल कर ले जिसका अकीदा दुरुस्त ना हो। तो जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, क्या वो हमको सही तालीम देगा, सही कुरान और हदीस की फहम में क्या करेगा? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई भी आलिम हो जिसकी किताबें हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसके अकीदे के बारे में हमें इल्म होना चाहिए। हमें उसके अकीदे के बारे में क्या होना चाहिए? इल्म होना चाहिए। तो इमाम रहमहुल्लाह के अकीदे के बारे में आता है, कान अल-बग़वी रहमहुल्लाह यअतक़िदु अक़ीदत अहल सुन्नह वल जमाअह, कि इमाम बग़वी रहमहुल्लाह अक़ीदे अहल सुन्नह वल जमाअह के हामिल थे। यानी जो सल्फ़ सालिहीन का अक़ीदा था, जो सहाबा किराम का अक़ीदा था, जो अहल सुन्नह वल जमाअह का अक़ीदा था, जो अहले हदीस का अक़ीदा था, या है वही अक़ीदा का था इमाम बग़वी का रहमहुल्लाह का अक़ीदा था। या ये कह सकते हैं कि इमाम बग़वी रहमहुल्लाह काना इमामन मिन इमामी अहल सुन्नह वल जमाअह, कि इमाम बग़वी रहमहुल्लाह भी अहल सुन्नह वल जमाअह के इमाम में से एक इमाम थे। और दूसरी चीज़ है कि किसी भी आलिम के अक़ीदे के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि उसके बाद आने वाले उलमा ने उसके अक़ीदे के बारे में कैसे हम पता पाएंगे कि फ़लाँ आलिम कैसे था, जब तक कि उसके बाद आने वाला या उसका कोई मुआसिर या उसके बाद आने वाले लोगों या उलमा में से कोई हमें बता के ना गया हो। तो इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह इनके अक़ीदे के बारे में कहते हैं, अला मिनहाज हिल्लन व अक़दन व अम्मा मज़हबु काना शाफ़िय्यन, कि वो सिरात मुस्तक़ीम पर थे, अहल सुन्नह वल जमाअह का उनका अक़ीदा था। लेकिन मज़हबी कौन क्या थे? यानी मज़हब में अइम्मे अरबा में से किसको मानने वाले थे? इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह को मानने वाले थे। किसको मानने वाले थे? इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह को मानने वाले थे। अब उसके बाद इमाम बग़वी रहमहुल्लाह के मुअल्लफ़ात यानी कौन कौन सी तसनीफ़ात, कौन कौन सी किताबें उन्होंने लिखा है, तो उनमें से चंद किताबों का नाम हम पढ़ेंगे, चंद किताबों को लेंगे। नंबर 1 मआलिम तंज़ील, ये किताब किस फ़न में है? फ़न्ने तफ़सीर में। किताब का नाम मआलिम तंज़ील फिल तफ़सीर। दूसरी किताब है शरह दूसरी किताब है शरह सुन्नह। तीसरी किताब है अल-मसाबीह, जिसको हम आप लोग पढ़ने वाले हैं। चौथी किताब है अल-जम्अ बैन अस-सहीहैन। उसके बाद पाँचवीं किताब है अत-तहज़ीब फिल फ़िक़्ह। इसके अलावा इमाम रहमहुल्लाह की बहुत सारी किताबें हैं, हम इन्हीं 5 किताबों पर इक्तफ़ा करते हैं। उसके बाद इमाम बग़वी रहमहुल्लाह की वफ़ात, कब वफ़ात पाए? तो इमाम बग़वी रहमहुल्लाह के बारे में आता है तूफ़िया बिमरव कि इमाम बग़वी रहमहुल्लाह मक़ाम मरव में वफ़ात पाए। उस वक्त कौन सा सन चल रहा था? तारीख़ क्या थी? 500। तूफ़िया अल-बग़वी रहमहुल्लाह बिमरव फ़ी शव्वाल सनता 16 व 500 मिनल हिजरा। 16 व 500 मिनल हिजरा, कि इमाम बग़वी रहमहुल्लाह मक़ाम मरव में शव्वाल के महीने में 516 हिजरी में वफ़ात पाई। वदुफ़िन इंद शैख़िही अल-क़ाज़ी हुसैन बिन मक़बरती अत-तालिक़ानी व लअल्लहु बलग़ 80 सना, और इनको शेख क़ाज़ी हुसैन के मकबरे के बगल में दफन किया गया, और उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी? तकरीबन 80 साल थी। तो ये था मुख्तसर तारुफ़ इमाम बग़वी के रहमहुल्लाह के बारे में, और इसको मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के ग्रुप में वीडियो भी अभी भेज दी जाएगी, और इसको PDF भी आप लोगों के ग्रुप में इंशाअल्लाह भेज दूँगा। तो यही आज का दर्स इंशाअल्लाह इस पर ख़त्म करते हैं, और वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाईन।